Hello, good morning to all of you, dear students. The last class, lesson number 3, we discussed determination of equivalent masses. What is equivalent mass? And one method by hydrogen displacement method, meaning is by using hydrogen displacement method, how to calculate the equivalent mass of the elements. How to calculate the equivalent mass of the elements. Today we will discuss the other method. The other method, that means total 4 methods are there. The number 1 hydrogen displacement method we discuss. The next number 2 oxide formation method. The oxide formation method number 2. Let us discuss the method number 2. Method number 2 oxide formation method. Oxide formation method. The oxide formation method, actually before writing the formula, the first discuss what is the formula. The formula is, see here, the equivalent mass of an element, ELT, equal to mass of the element reacted divided by mass of the oxygen reacted. The mass of the oxygen, suppose this is x gram, mass of the element reacted x gram, and mass of the oxygen reacted y gram. Mass of the oxygen reacted y gram into equivalent mass of oxygen. तो यहाँ से हम लिखेंगे x divided by y into 8. Equivalent mass of oxygen is 8. तो equivalent mass of the element E element equal to, this is our formula. तो next maximum student पूछता है ये formula कैसे हुआ है, ये कहाँ से ये formula आ गया. तो let us take this part, explanation. So suppose one element M is reacting with oxygen. After reaction M2OX, where X is the valency of the element, जहाँ X valency of M, X is the valency of M. तो ये फॉर्मूला है. तो इसी रिएक्शन में मानो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो गया कि X ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो मेटल M है, इसी का X ग्राम रिएक्टेड विथ Y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. X ग्राम मेटल reacted with y gram of oxygen. After reaction ये फॉर्म हुआ है. तो इसका मास कितना होगा, x plus y ग्राम, क्योंकि all of you know mass of the reactant equal to mass of the product. तो x gram of the element reacted with y gram of the oxygen. After reaction metal oxide फॉर्म हुआ है. तो metal oxide का मास कितना होगा, mass of the metal reacted plus mass of oxygen reacted, तो x plus y. तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला कहाँ से आए वो डिस्कस करेंगे. देखो यहाँ से लिखेंगे हम अभी y gram of oxygen reacted with x gram of मेटल और एलिमेंट. तो हमको ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 है. तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, दैट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट. देयरफॉर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन reacted with x by y into 8 gram of metal. So this is equal to equivalent mass of the metal M. यही है फॉर्मूला. देखो फॉर्मूला में जो हमने लिखा था वही लिखा था. इक्विवेलेंट मास ऑफ हाउ टू कैलकुलेट, ये जो हमारा फॉर्मूला था यही है. तो नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम दो सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम दो सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर. तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, mass of an of a metal oxide.
mass of a metal oxide is 50% more than the mass of the metal reacted with oxygen. Full stop. Calculate the equivalent mass of the metal. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोला कि ये जो मेटल है, मास ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। उस मेटल ऑक्साइड का जो मास है, देखो मेटल का जितना ग्राम रिएक्ट किया था उससे 50% ज्यादा है। देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल। तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन के यहाँ देखो, लेट मास ऑफ द मेटल reacted equal to x gram, then mass of the metal oxide formed equal to मेटल के मास प्लस 50/100 इंटू x। तो ये होगा मेटल ऑक्साइड का मास, क्योंकि 50% मोर बोला है, तो मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड इक्वल टू मास ऑफ द मेटल प्लस 50/100 इंटू x। तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 x ग्राम। तो मेटल का मास मिला है, हमें ऑक्सीजन के मास चाहिए, तो ये है मेटल ऑक्साइड के मास। तो इसी 1.5 x ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो इसी में x ग्राम मेटल है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है, रिमेनिंग मास इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से अब अभी हम लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड इक्वल टू मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड माइनस मास ऑफ मेटल इक्वल टू 0.5 x ग्राम। तो दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ मेटल मिला है, हमने मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट। फॉर्मूला अप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास। तो नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू मास ऑफ द मेटल x डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑक्सीजन 0.5x इंटू 8। तो यहाँ से x कैंसिल, ये 0.2 है, इक्वल टू 16 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल हो गया देखो 16 ग्राम। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द मास ऑफ एन एलिमेंट एन ऑक्साइड of an element contains 20% of oxygen by mass. Full stop. Calculate the equivalent mass of the metal of the element. Calculate the equivalent mass of the element. तो now come to the solution of this question. एक तो हम पहले डिस्कस किया है, तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सी हियर भी हम लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 20 ग्राम। तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो मीनिंग इज उसी मेटल ऑक्साइड में मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ मेटल दोनों मिला के 100 है। तो उसी 100 में 20 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अगर टोटल मास 100 था, 100 में से 20 ग्राम ऑक्सीजन है, तो मेटल का मास कितना होगा
मास ऑफ मेटल और एलिमेंट, हाँ एक्चुअली एलिमेंट लिखो यहाँ, हमने वहाँ मेटल नहीं बोला है, एलिमेंट बोला है क्वेश्चन में, इट विल बेटर टू राइट एलिमेंट। मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू 80 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल एलिमेंट मिल गया, मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। सो नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू 80 by 20 into 8, तो ये काटो, उसके बाद 432 ग्राम। द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट अंडर दिस कैटेगरी देखो 32 मिल गया हमें। तो नाउ टेक वन मोर न्यूमेरिकल्स, let us take क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स ऑक्साइड इज, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट in its oxide is 53 by mass, full stop, 53 by mass, full stop। Next बोला if the molecular formula of its oxide, if the molecular formula of its oxide is, if the molecular formula of its oxide is M2O3, then the atomic mass of the element is, so these are the option given. First option 45, second option 9, third option 38, fourth option 27। सो इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट। तो हमारा जो ऑप्शन है, द ऑप्शन इज, ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, हाउ विल यू फाइंड आउट, सी हियर द सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू, तो बोला है द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स ऑक्साइड, तो मास ऑफ द एलिमेंट है 53 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 100 minus 53, 47 into 8, the after calculation you will get approximately 9 ग्राम। इक्विवेलेंट मास है 9 ग्राम। अभी ये ऑक्साइड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, देखो इसमें आ जाओ, तो इसी में ये जो 3 है ये मेटल का वैलेंसी है और ये जो 2 है ऑक्सीजन का वैलेंसी है। तो इस मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला से ये हमको क्लियर है कि वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज 3। तो इक्विवेलेंट मास मिल गया हमें। जब इक्विवेलेंट मास मिल गया, हमारा फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो हमें कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास। तो नाउ एटॉमिक मास इक्वल टू, द एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट किया है, इक्विवेलेंट मास हमें कितना है, 9 इंटू वैलेंसी 3 इक्वल टू 27 ग्राम पर मोल। दिस इज द एटॉमिक मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर इक्विवेलेंट मास न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है तो हाउ विल यू कैलकुलेट, ये क्वेश्चन एक बार ठीक ठाक से देखो। पहले वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अप्लाई करके हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया है, और उसी कंपाउंड और एलिमेंट का जो ऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसका मीनिंग यही है। तो उसी फॉर्मूला से यू हैव टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। फॉर्मूला से हमने वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट 3 मिल गया, तो इक्विवेलेंट मास 9 है। तो एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, तो 27 आ गया। तो दिस इज द आंसर।
तो नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड नंबर 3। थर्ड मेथड जो है मेथड नंबर 3 क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं बेस्ड ऑन दिस। मीनिंग इज इन दिस मेथड, देखो बेस्ड ऑन दिस मेथड एक एलिमेंट चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, that one is going to react with chlorine. After reaction chloride will form. तो उसी क्लोराइड फॉर्मेशन के ऊपर देखो हाउ विल यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। तो उसी के लिए सी हियर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास E इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट ELT एलिमेंट रिएक्टेड। सपोज एज्यूम किया हमने दिस x ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन reacted, this is y gram into equivalent mass of chlorine तो अगर इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम ये मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय y इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू दिस इक्वेशन, यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो नाउ अभी आ जाओ ये फॉर्मूला के एक्सप्लेनेशन, जैसे हमने ऑक्साइड फॉर्मेशन में डिस्कस किया था ना, फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन एक्सप्लेन करेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, एक्सप्लेनेशन पार्ट। एक्सप्लेनेशन में सी हियर, सपोज एन एलिमेंट M reacts with chlorine, after reaction MClX फॉर्म हुआ है, where X is the वैलेंसी ऑफ एलिमेंट M का वैलेंसी है, X is the valency of the element M। तो इसी में सबसे इस रिएक्शन में x ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट किया था और क्लोरीन का कितना ग्राम, y ग्राम। x ग्राम ऑफ द एलिमेंट रिएक्टेड तो y ग्राम ऑफ क्लोरीन। आफ्टर रिएक्शन ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, तो इसका मास हो जाएगा x प्लस y ग्राम। तो इसमें क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास हमने बोला था पहले 35.5। तो अभी हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, सी हियर y ग्राम ऑफ क्लोरीन reacted with x gram of metal, therefore 35.5 gram of chlorine reacted with x by y into 35.5, तो this is equal to equivalent mass of the element M। यही था हमारा फॉर्मूला में जो लिखा था यही था फॉर्मूला, क्योंकि क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5 है, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन will react with how many gram of the element M, तो ये M का इक्विवेलेंट मास। तो ये हमारा फॉर्मूला है। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला लेट अस टेक 1-2 न्यूमेरिकल्स। इसके ऊपर हम 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। द क्वेश्चन इज, a chloride of an element contains chloride of an element contains 50.5% of chlorine by mass, full stop, if the specific heat capacity of the element is 0.056 calorie per Kelvin per gram, then calculate the
exact atomic mass of the element. Calculate the equivalent mass, exact atomic mass of the element. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस न्यूमेरिकल का दो पार्ट है. तो पहला पार्ट डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन, सेकेंड पार्ट में आएंगे एग्जैक्ट एटॉमिक मास. तो फर्स्ट पार्ट सी हियर द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू. तो a chloride of an element contains 50.5% of chlorine by mass. 50.5% सॉरी क्लोरीन नहीं 50.5% ऑफ एलिमेंट है. हाँ 50.5% ऑफ एलिमेंट बाय मास. तो एलिमेंट की मास दिया है 50.5. तो क्लोरीन का मास कितना होगा 100 माइनस 50.5 तो कितना होगा 49.5 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन 35.5. तो इसको कैलकुलेट करो अप्रोक्सीमेटली राउंड अप करके देखो 36 यू विल गेट. जब इक्विवेलेंट मास हमें मिल गया तो अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है. तो डुलोंग पेटिट्स लॉ अप्लाई करके वहां से एटॉमिक मास कैलकुलेट करो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास. तो डुलोंग पेटिट्स लॉ, व्हाट इज डुलोंग पेटिट्स लॉ? वी डिस्कस दिस थिंग यू हैव गॉट. तो अकॉर्डिंग टू डुलोंग पेटिट्स लॉ approximate atomic mass equal to 6.4 divided by specific heat capacity equal to specific heat capacity 6.4 divided by 0.056. द आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ वैल्यू आएगा 114.96 ग्राम पर मोल. ये हमको अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास मिल गया. तो इक्विवेलेंट मास मिल गया, एटॉमिक मास मिल गया. तो ये एटॉमिक मास एंड इक्विवेलेंट मास ये दोनों अप्लाई करके उस एलिमेंट का वैलेंसी कैलकुलेट करो. तो वैलेंसी अभी हम कैलकुलेट करेंगे. तो गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. तो नाउ वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट equal to approximate atomic mass divided by equivalent mass. Approximate atomic mass divided by equivalent mass. The approximate atomic mass 114.96. The equivalent mass 36. The after calculation approximately तुम्हें 3 मिल जाएगा, राउंड अप करके 3 मिल जाएगा ये वैल्यू. तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज 3. तो नाउ एग्जैक्ट एटॉमिक मास, क्योंकि डुलोंग पेटिट्स लॉ में हमें अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास मिला था. तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी इक्वल टू 36 इंटू 3 इक्वल टू 108 ग्राम पर मोल. दिस इज द एग्जैक्ट एटॉमिक मास. देखो डुलोंग पेटिट्स लॉ में जो आया था दैट वन इज अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास. इन द डुलोंग पेटिट्स लॉ अप्लाई करके वी हैव कैलकुलेटेड दैट वन इज अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास. बट एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू, याद रखो, दिस इज इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी. तो वैलेंसी वो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास अप्लाई करके वैलेंसी कैलकुलेट करो, फ्रैक्शन में आएगा. क्योंकि ऑल ऑफ यू नो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ऑलवेज होल नंबर है. तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो. आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू होल नंबर, तो नाउ एग्जैक्ट एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी. तो ये मेथड याद रखो जो हाउ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास. तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास. तो ये हमें मिल गया. तो नेक्स्ट हमको अनदर पार्ट डिस्कस करना है. हाउ विल यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट. ये जो अभी क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड हमने डिस्कस किया है, मानो कि ये मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड, MClX नाम दिया है. ये गैसियस फॉर्म है, मानो कि गैसियस फॉर्म में है.
तो अगर वो गैसियस फॉर्म में है, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ दिस MClX इज गिवन, then using the value of vapor density, how will you calculate what is the value of X or what is the valency of the element M? M का वैलेंसी कितना है, वो अनदर टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक हम लिखेंगे, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी of an element, valency of an element from the vapor density Vd of its chloride। ये हमारा टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स क्लोराइड। तो इसके लिए फर्स्ट सी हियर, let us an element M react with chlorine after reaction MClX formula, where X is the valency of the element, एलिमेंट का वैलेंसी है X। तो इसी के ऊपर नाउ सी हियर, तो अभी हम लिखेंगे मोलिकुलर मास, यहाँ देखो मोलिकुलर मास ऑफ MClX इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ M प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इनटू X, T हो जाएगा मोलिकुलर मास। एक बार देखो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला में लिखा है M एक 1 M है, तो उसका एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन की एटॉमिक मास 35.5 इंटू नंबर ऑफ क्लोरीन X, MClX हो गया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मोलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दिस रिलेशन ऑलरेडी यू हैव गॉट, तो मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू Vd वेपर डेंसिटी, तो हमने 2 इंटू Vd कर दिया है। जब Vd कर दिया है तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट की जगह में इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इंटू वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट प्लस 35.5 X। ये पार्ट देखो, ये कि एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी, तो हमने M एलिमेंट M जो है, मानो कि एज्यूम करो उसका इक्विवेलेंट मास E है एंड उसका वैलेंसी ऑलरेडी हमने बोला X है, तो इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी उसका एटॉमिक मास हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट क्लोरीन का पार्ट एक ही है। तो नाउ इस जगह से अभी हम लिखेंगे सी हियर वैलेंसी X इक्वल टू 2 इंटू Vd डिवाइडेड बाय E प्लस 35.5। तो ये है हमारा इक्वेशन। यूजिंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। यहाँ से वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट मिल जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। That numerical, one numerical to discuss from based on this. That numerical, see here question. Question is 1 gram of a chloride. 1 gram of a chloride was found to contain was found to contain 0.835 gram of chlorine, full stop. If its vapor density is 85, then molecular formula of the chloride is, then the molecular formula of the chloride is, so these are the option given. First option MCl,
second option MCl2, third option MCl3, fourth option MCl4. तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? तो हाउ विल यू फाइंड आउट दिस थिंग? तो उसी के लिए हम सॉल्यूशन में जाएंगे। तो पहले ऑप्शन में टिक मार्क करो, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। पहले देखो 1 ग्राम ऑफ ए क्लोराइड वाज फाउंड टू कंटेन 0.835 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो मीनिंग इस क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड अप्लाई करके पहले उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, नेक्स्ट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करो। वैलेंसी के लिए द फॉर्मूला आई हैव गिवन, सीधा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करके वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो हम वैलेंसी निकालेंगे। जब वैलेंसी निकल जाएंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट। द सॉल्यूशन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट m इक्वल टू, क्योंकि इस बार जो ऑप्शन दिया हुआ है वो एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल कैपिटल M है। द इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, तो मास ऑफ द एलिमेंट 1 minus 0.835 divided by 0.835 into equivalent mass of the chlorine 35.5। तो ये है इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। सपोज आफ्टर कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट x मिला है। इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इज x तो वैलेंसी नाम दिया है ना, तो हमको किसी और नाम देंगे। दिस इज स्मॉल a है, नॉट 9, दिस इज स्मॉल a। इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इज स्मॉल a ग्राम। The next point, see here, तो valency x equal to तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 into Vd divided by E plus 35.5 equal to 2 into 85 divided by इक्विवेलेंट मास A, तुम कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन के बाद मिल जाएगा वहाँ, A into 35.5। तो आफ्टर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यू विल गेट 4। जब एलिमेंट M का वैलेंसी 4 मिल गया तो नाउ मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू MCl, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है तो M का कोई सबस्क्रिप्ट नहीं होगा, तो MCl4। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करना है और मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन एलिमेंट, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ द गिवन एलिमेंट, व्हाट इज द करेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला, उसके लिए फोकस ऑन दिस मेथड। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में मत जाओ, क्योंकि एग्जाम में तो जो क्वेश्चन पूछेगा सब डाटा वैल्यू अनकॉमन होगा ना, न्यू क्वेश्चन हो पूछेगा, तो इसलिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके हमें कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन द मेथड ओनली। तो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास बाय डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आज के लिए यहीं पे रखो, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ओके बाय।